Akshay ji, Dr. Saab, thank you very much for speaking with us. Thank you very much for calling us. I had a different set of questions before I came. लेकिन कल रात को when KK passed away, and there was this outpouring of grief because a young artist passing away, it just causes kind of a shock. And you've been in the industry for so many decades. He was also part of your industry, a young singer. Has been associated. Part of my career, he was part of my lots of songs. Airlift के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि actually climax गाना था. It was because of that song the climax was sounding so good because वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था, तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we're losing them, and it happened in a very young age. And Akshay ji, we still don't know the reason for his passing away, but increasingly people are talking about a work-life balance and how in the entertainment industry the pressures are so much that people don't have time for family, don't have time for oneself, don't have time to de-stress. What do you have to say about this? Because you have spoken about it. Lots of things has got to do with, जैसे आप बोल रहे हैं de-stressing हो, lots of things have got to do with balancing. और कुछ केसेस तो ऐसे हैं मैं जानता हूँ जो कि लॉन्ग कोविड से भी रिलेटेड है. एंड सो आई वुड जस्ट से कि वी हैव टू कीप आवरसेल्फ काम, वी हैव टू नॉट पैनिक, एंड द बैलेंस ऑफ वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल क्वाइट अ लॉट, एंड वी हैव टू सेटल आवरसेल्व्स and keep ourselves, our mind, and the way we जो भागम दौड़ी है उसको थोड़ी सी, उसका जो स्पीड है वो थोड़ी कम करनी चाहिए कुछ सालों तक के लिए, जब तक we come out of this whole pandemic which is going on. You had COVID abhi recently. Yes. You couldn't take part in the India Pavilion in Cannes. Yeah. आपने इसके बारे में भी कहा that it was a loss for you. Yeah, I couldn't go. But that was the first time in my life I got an invitation to go to Cannes. And I don't believe that. Really? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया. आपको नहीं बुलाया? कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े फिल्म एक्टर हैं. नहीं हो सकता है, कोई ऐसी फिल्में मैंने नहीं की हो जो कांस तक जा सके. अच्छा. तो नहीं बुलाया, इसमें शर्म की क्या बात है? So do you feel that Indian film industry has like really arrived in the global scene जो अब Indian films को लेकर special? I am sure, and all thanks to our Prime Minister who has taken us so big and so in such a huge way internationally. So, and things are changing for our country. Well, that's it. Akshay ji, while researching for this interview, I saw a number of your video interviews which you have done. आप एक खासियत है आपके इंटरव्यूज में that it feels like you straight from the heart that you speak. Very दिल से बोलने वाले आदमी हैं. How come that you in this industry जहाँ पे इतना gloss, glamour सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी you are very जमीन से जुड़े हुए? देखिए, मेरे को बहुत पहले मतलब किसी ने एक बात सिखाई थी कि जब भी इंटरव्यू करो या किसी से बात करो, just be yourself. जो नहीं आती, जिस बात के बारे में नहीं पता, जो कभी कभी कोई इंग्लिश में ज़्यादा बात करने की मुझे कहता है तो ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं आती. So I just be myself. The idea behind this is just be yourself, and that's it. तो हो सकता है because just being yourself comes from your heart, and that comes out. That is all it is. Is that what you did जब आपने प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया? बिल्कुल दिल से आपने सवाल पूछा? हाँ, दिल से ही पूछा. मतलब मैं अपने जो मुझे जानना मैं जो एज अ कॉमन मैन, आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रधानमंत्री
घड़ी उल्टी ऐसे क्यों पहनते हैं, आम वाले जो क्वेश्चन था, जो भी है, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इट, बिकॉज फिर मेरे में और बाकियों में क्या फर्क रह जाता। मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया। इट ऑल लुक्स फेक if I would do that. I just wanted to ask him very simple, straight questions, and that's it. And थोड़ा सा बातें की, एक दो चुटकुले सुनाए मैंने, बस, और क्या, खत्म हो गई। Were you surprised at all that you were given this opportunity? क्योंकि it's not common कि एक पूरा sit down interview एक film actor जो है प्रधानमंत्री से पूछे। I was taken aback and I didn't know that I would get a chance to do that, and I was honored कि जाके मैं उनके साथ बैठूं और उनके साथ बातचीत कर सकूं। I was a little bit nervous, but then after I started talking to him, he made me not feel nervous at all, and उसके बाद everything was just flowing. I was just enjoying myself. Do you think that it's also because you could vibe with him or whatever, because he's also somebody who is an outsider? आप भी एक किस्म से एक फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर ही थे ना, आपका कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नाता नहीं था. You just came from nowhere, and he's also the same way. I think the best part about our Prime Minister is he knows how to mold himself. He's if he's talking to me, he'll mold himself towards me. If he's talking to him, he'll mold himself. If he's talking to children, he will be according to their age and this, how it should. So I think the ability to mold himself is a great thing in him. Is that something that you also did in the film industry? You've kept on changing the kind of roles that you have done. You didn't typecast yourself कि मैं action hero हूँ. Well, मतलब जब मैं आया था इंडस्ट्री में तो मैं एक एक्शन हीरो के आया था. मुझे मतलब सिवाय एक्शन के कोई कुछ और रोल देता भी नहीं था, और इसलिए भी नहीं देता था क्योंकि मैं एक्शन के सिवा ज़्यादा जानता भी नहीं था. तो मैं एक्शन ही करता था. मैं और फिल्में करना चाहता था लेकिन मुझे कोई देता नहीं था. फिर थोड़ा आगे जाके मुझे कभी प्रियदर्शन साहब ने एक कॉमेडी फिल्म दी, हेरा फेरी. फिर उसके बाद धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, फिर मैंने जानवर की. फिर एक वक्त आया जब मेरे पास थोड़े पैसे हो गए और मुझे ना मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की और मैंने उसमें पिक्चर प्रोड्यूस करना शुरू की. फिर मैंने ऐसी टॉयलेट एक प्रेम कथा, एयरलिफ्ट, केसरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ऐसे मैंने करीबन 32 फिल्में बनाई हुई हैं. सोशली रेलेवेंट जो फिल्में एक्चुअली में मैं करना चाहता था. Okay. लेकिन कभी मौका नहीं मिला. तो पर वो करने में 20 साल लग गए आपको इंडस्ट्री में. तो पैसे कमाने में भी तो वक्त लगता है. ऐसे थोड़ी आ जाता है पैसा जाके. मैंने जब काम शुरू किया था अपनी जिंदगी में तो मुझे पहली फिल्म के 51,000 मिले थे पूरी फिल्म के. करीबन 10 साल तक मेरी रेम्यूनरेशन 8 या 9 लाख से ऊपर नहीं गई थी पर फिल्म के. फिर आगे जाके बढ़ती गई. जब पहली बार 1 करोड़ रुपए की एक फिल्म साइन की थी, ओहो हो, मतलब आत्मा प्रसन्न हो गई थी. क्योंकि द रीजन आई एम सेइंग 20 साल लग गए, मैं इसलिए कह रही हूँ, नॉट बिकॉज इट्स अ क्रिटिसिज्म, बट मैं ये कह रही हूँ दैट ऐसी फिल्में बनाने के लिए कोई पैसे नहीं डालना चाहता. डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, आपकी फिल्म, आपने भी कहा है कि फिल्म बनाने के लिए 10 साल 15 साल आप नो प्रोड्यूसर वाज रेडी. ऐसे क्यों होता है? One of the reason is that making historical film जी it is very expensive in the terms that for even putting up the sets, that is the additional budget that you put on to your budget. Also number of days of the shoot, also the preparation. For example, in normal shooting आप 9 बजे अपनी shooting शुरू कर सकते हैं. For a period drama or a costume drama or a history, the entire team has to begin at 3 o'clock. वो तो 4 बजे उठ जाते हैं. ये अकेले हैं, entire team. So there I have worked with the actors. ये 7 बजे कहते हैं तो 7 बजे डॉट रेडी मिलते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो 7 बजे कहते हैं और 2 बजे तक नहीं पहुंचते हैं. तो इन सबको लेकर, इस पूरे मेले को लेकर साथ में चलना बहुत मुश्किल होता है. और दूसरी एक बात ये भी थी कि अभी तक ट्रेडिशनली हिंदी सिनेमा में जी हिस्टोरिकल्स को हमारे ऑडियंस ने बहुत एक्सेप्ट नहीं किया. जबकि ये बहुत ही विचित्र बात है कि
भारतीय सिनेमा की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र से शुरू होती है। या हमने शुरू किया आज़ादी के बाद के दशक में, हमने बहुत सारे हिस्टोरिकल्स बनाए। फिर अचानक क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा सिनेमा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंडियन नहीं था, पर उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता धीरे धीरे बैक सीट पर जाती रही। और मैं कई बार कहता था कि मैं, आपको जान के स्मिता जी हैरानी होगी कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ। और उसका एक सीधा सा रीज़न है कि मैं उन सबसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए वो एक बड़ा प्रश्न होता है कि इसमें भारत कहाँ है। तो इस तरह की फिल्मों को पहले ले जाकर लोगों को विश्वास दिलाना कि लोग इसे देखेंगे। तो जितनी बार मैं लोगों के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब कोई मॉडर्न लव स्टोरी ले आइए, और मेरे लिए चुनौती थी कि मॉडर्न लव स्टोरी तो 99% बना रहे हैं, मैं आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने भारत के इतिहास को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान और जीवन दिया है। इस सभ्यता और संस्कृति की कहानी 5000 सालों की है, तो हम उसको कब दर्शकों के सामने ले जाएंगे। आपने जो फिल्म बनाई है इसके बाद जब हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ अमर चित्र कथा, चंदा मामा ऐसी किताबों से या फिर सुनी सुनाई बात। मैं अक्षय जी से शूट से पहले बात कर रही थी, तो हमारा जो व्यू था कि कैसे दिखते हैं पृथ्वीराज चौहान, ऑफ कोर्स इट्स अ काल्पनिक है, बिकॉज जिन्होंने भी स्केच किया उसके हिसाब से ही वाज लाइक राउंड फिगर्ड, शॉर्ट, गोल चेहरा, और अक्षय जी का पूरा चिजल्ड है, पतले है। तो आपने अक्षय जी को कैसे चूज किया? ये सवाल इन दिनों कुछ लोग ज्यादा उछाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ये क्रिटिसिज्म या आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही काला है, हम सावरा कहते हैं, लेकिन भारत के टेलीविजन के इतिहास में या भारत में जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण की भूमिका की है वो सभी गोरे रहे हैं, तब लोगों को आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि महाभारत के जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में उन सबकी आयु 80 से आगे जा चुकी थी। हमने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को वहां नहीं दिखाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों के मनों में कुछ पात्रों को लेकर एक छवि बसी हुई है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम सच को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने कहा कि जो चित्र लोगों ने बनाए हैं पृथ्वीराज सम्राट वैसे ही दिखते थे? मैं आपको भारतीय चित्रकारिता, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वीराज के अलग अलग रूप दिखेंगे। बूंदी की शैली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पृथ्वीराज लीन है, जैसा ये हमारे अक्षय जी दिखते हैं। परंतु ये बातें न लोग सवाल करते हैं। जैसे मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि रासों से हम लोगों ने प्रेरणा ली, और रासों के अतिरिक्त जो फोकलोर हैं भारत की, उससे हम लोगों ने कुछ कहानी ली। लेकिन यदि मैं ये पूछ लूं कि इस देश में कितने लोगों ने रासों को अपने हाथ में लिया है, ये वापस मैं कहूँगा ये आलोचना नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये उनका काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया उनसे गंभीरता से तो सवाल करिए, सीधे निर्णय मत दीजिए। हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहां हमको सारी बातों का तुरंत निर्णय देना है। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुति हम वेदों को कहते हैं कि जो सुने गए, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, अलग अलग बातें करती हैं। यानी एक ही सच को लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है, तर्क का अंत नहीं। तो शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि स्मृति अलग कहती है, श्रुति अलग कहती है, तर्क का अंत नहीं है, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है। इसका मतलब आप थोड़ा बचिए, तो किस पर चले हैं? उसी रास्ते पर चलो, महाजनो येन गतः सपंथा, जिस पर बड़े लोग, अनुकरणीय लोग चले। तो कई बार मैं कहता हूं कि पृथ्वीराज को आप उसके कद काठी में मत देखिए, पृथ्वीराज के शौर्य को देखिए, उसके विचार को देखिए, उसके त्याग को देखिए, उसकी सहिष्णुता को देखिए, उसकी शरणागत वत्सलता को देखिए, तब जाके आपको एक चरित्र दिखेगा। मैं एक चरित्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। चरित्र का कोई भी चित्र हो सकता है, आज इन्होंने किया है, कल कोई दूसरा करेगा, हो सकता है कोई बहुत ही जिसको हम कहते हैं। तो Akshay ji, were you overwhelmed when this offer came to you? Because what Dr. Saab is saying is that इतने सारे facets हैं to पृथ्वीराज चौहान. Did you feel that आपने कभी रोल नहीं किया of any king as such? So did you feel कि आप
you know, were you overwhelmed कि मुझे क्यों मिला ये रोल और मैं कर पाऊंगा कि नहीं? हाँ जी, ज़रूर, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं सोचा कि, क्योंकि मैंने भी, जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने भी अपनी हिस्ट्री बुक में जब मैं पढ़ता था तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर बनाई हुई थी, ही वॉज अ लिटिल स्टाउट पर्सन, एंड मैं यही सोचता था कि मैं थोड़ी कर पाऊंगा, मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था, मैं आई हैव एन एथलेटिक बॉडी एंड दैट वाज अ स्टाउट बॉडी, दैट वाज सो तभी इन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बेटा करीबन 18 से 20 वॉर्स लड़ चुके हैं, एंड मेरे हिसाब से ही हैड एन एथलेटिक बॉडी, और तो देन ही शोड मी द रीजंस, जैसे अभी बता रहे थे, और भी इन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बैठ के बात की है, एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैं तो इतनी सारी कहानियां इनसे सुन चुका हूं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। सो व्हेन ही केप्ट ऑन टेलिंग मी, आई वाज टेकन अबैक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीजें हैं और हमें पता नहीं। और मैं फिर, लेकिन मैंने इनसे कहा भी, ये सब सही है ना डॉक्टर साहब, ये सब सही है ना, ये काल्पनिक तो नहीं है ना, यू आर नॉट मेकिंग इट अप ना। तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया, ये क्या, एंड आई वॉज कन्विंस्ड। एंड वैसे भी ये अगर बना रहे हैं तो योर 90-95% जॉब इज डन। एंड मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि आप होमवर्क काफी किया होगा। मैं बोला होमवर्क क्यों करूं, 18 साल से ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया। So you're completely a director's baby, a writer's baby, है ना? Some movies you have to अपने आप को अर्पित करना पड़ता है। I have to give up myself and completely go with what his belief is. What was the biggest challenge in essaying this role? Oh, there was no challenge. अच्छा. There was no challenge. I could easily say there was a very lot of challenge. I really worked hard and all, but there was no challenge because all my challenges he took it on his chest. And he was taking it and he was driving the whole thing. क्योंकि a period film बनाने में सालों साल लग जाते हैं. I'm not talking about the research. Research अलग बात होती है, but even putting it into action, sets बनाना, उसे फिर अंजाम देना. 42 दिन में इन्होंने मेरे साथ काम कैसे? ये टॉम क्रूज वाली बात हो गई फिर. हाँ, बिल्कुल। वो मुझे कई बार लोगों ने बताया कि विदेशों में फिल्मों को इतना समय नहीं लगता है शूटिंग करने में, लेकिन उसका कारण प्रेपरेशन। Similarly, यशराज फिल्म जैसा प्रोडक्शन हाउस, which is thorough professional, and the team they had given me, they were all brilliant. My all assistants were ready to be the directors. So they were. बम्बई में ही 36 सेट लगाए, 36 सेट. There was not a single day's delay. फिर हर एक इंसान के जो मेरे कोर्टयार्ड में थे, उनकी पगड़ियां 500 किस्म की पगड़ियां हैं। 523 एक पगड़ी आप देख सकते हो विद द पगड़ी, बिकॉज ऑफ द पगड़ी यू कैन कम टू नो कि वो कहाँ खड़े होने चाहिए। अब उनके औहदे के हिसाब से पगड़ियां हैं। ओके, सो ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीस की एलिमेंट। ओके, आप कह रहे थे ये काल्पनिक तो नहीं है, हिस्टोरिकल है। नाउ ऑल द प्रॉब्लम्स विद आवर पीरियड फिल्म्स हैव बीन दैट इसमें आर्टिस्टिक लिबर्टी ली जाती है, यू नो, एंड देन देयर इज क्रिटिसिज्म, चाहे जोधा अकबर क्या हो, यू नो। आई नो दैट लाइक व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान, आई वेंट टू द लाहौर फोर्ट, एंड वहां पे लोग कहते हैं देयर वाज नो क्वीन कॉल्ड जोधा, ये तो आप हिंदू हैं जो आपने कॉन्कॉक्ट किया हुआ है कि जोधा तो कोई थी ही नहीं। तो सिमिलरली डू यू थिंक दैट दिस फिल्म विल ऑल्सो, यू नो हाउ इट इज, राइट, इंडिया is being criticized these days that religious polarization बहुत हो चुकी है, revival of this Hindu nationalism is happening, और आप फिल्म बना रहे हैं on the Hindu Samrat. So do you expect a lot of blowback coming your way that this is imaginary, not real? हाँ जी, दोनों से पूछ रही हैं आप। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी चुनौती है, इसलिए कि ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतिहास में there are so many different views in history, and since there are different views that makes it more interesting. इसलिए जो भी हम लोगों ने फिल्म बनाई है उसमें उन सारे व्यूज़ का
ध्यान रखा है कि व्हाट आर द पॉपुलर व्यूज, व्हाट इज द पॉपुलर फोकलोर. So we have to incorporate that. What I have kept in mind that I should not do something which is contradictory to history. So nowhere in the film or till date I have never made anything which is against history. Wherever history is silent, that is the space I choose to elaborate or to use my imagination. So in my submission is that I have never done anything which is contradictory to what has been proven. What has been proven. और दूसरी बात, क्रिएटिव लिबर्टी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि ये बहुत ही सुंदर कहानी है. अच्छा. और इस पर एक महाकवि जिसका नाम चंद बरदाई है, उसने एक महाकाव्य लिखा है जिसको हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है. इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर नामवर सिंह जैसे लोगों ने भाष्य लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं. तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत काम किया है, हम उसको दर्शक तक नहीं ले जा पाए. एंड आई ऑलवेज से controversy is welcome, because that will space controversy is welcome, that will give space for debate. हमने सारे समस्याओं का वाद, I think I believe in the debate as well. डिबेट तो होगा ना. आप पहले सोमनाथ जाते हैं, काशी जाते हैं और फिर सम्राट. नहीं, ये जब मैं गया हूँ, यहाँ गया हूँ, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ, जब मैं गया हूँ, it is related to सम्राट पृथ्वीराज. It is Kashi is related to Samrat Prithviraj Chauhan. It is not just ऐसे मैं चला गया था. And I have not gone for religious reason. I've gone for the cultural thing. I've gone for to tell people that this is our culture and why it is essential. मैं कहा हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि it is because I believe in because he explained me why Samrat Prithviraj Chauhan and Kashi and Somnath is joined relevant to each to other. Indian history. Okay. So it is nothing got. I've gone there and I have paid my respect. I have not gone there to ask कि मेरी फिल्म चला देना. पर वो भी मांगने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं स्मिता, हम लोग बड़े स्पष्ट थे जी. चूंकि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदू नेशनलिज्म, मैं उसको कल्चरल नेशनलिज्म भी कहता हूँ. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिवाइवल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ दिस नेशन इज हिंदू. एंड व्हेन आई से हिंदू इट मीन्स कल्चर. हैविंग सेड दिस, व्हाई डिड वी गो टू सोमनाथ और वाराणसी? Now as we know that the cultural capital or the spiritual capital of India is Varanasi. So इस देश में जहाँ कभी भी प्रेरणा, और गंगा और हिमालय ये हमारे इतिहास के साक्षी हैं, ये भावना की बात है. गंगा ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम सब की भावना है कि ये वो धारा बहती आ रही है जिसने इस इतिहास को देखा है. और मैं चूँकि इस देश में बहुत डिबेट चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को पहली बार जिसने तोड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है. कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, और हमारी फिल्म में भी है, तो एक रिलेशन वो भी था. दूसरा, सोमनाथ गए. सोमनाथ का भी रेफरेंस हमारी फिल्म में आता है, आप देखेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आज शाम को देखिए, आज देखें. और सोमनाथ को कई बार तोड़ा गया, और इस देश के सामने ये प्रश्न था कि जिसका ध्वंस कर दिया गया उसको ऐसे ही छोड़ दें. तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, मेनन साहब, इन सब ने मिलकर तय किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नेहरू जी इसके विरोध में थे. उन्होंने कहा कि हमारी आस्था, ऊर्जा का केंद्र भगवान सोमनाथ हैं, और सिर्फ भगवान सोमनाथ मतलब ये हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात है. भारत जो लगभग 1500 से ज़्यादा वर्षों से 1192 के बाद मैं कहता हूँ कि जो गुलाम रहा, जिस पे कई प्रकार के अत्याचार हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, सब कुछ इस समाज ने सहा. आज आज़ाद देश में हमारे पास एक अवसर है कि हम उस संस्कृति का घोष वापस करें, और उसका प्रतीक बना भगवान सोमनाथ का मंदिर, जिसे 1948 से शुरू किया गया. तो मैं कई बार कहता हूँ कि अपने ही मंदिरों का पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना कोई गलत बात है, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र, सेंटर ऑफ आवर कल्चर.